Hello, friends. Let's begin with the same topic, that is pronoun sarvana. Now we will start from third kind, that is indefinite pronoun. आज हम फिर वही शीर्षक के बारे में जानेंगे जो कि है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। आज हम शुरू करते हैं तीसरे काइंड से जो कि है इनडिफाइनाइट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। An indefinite pronoun refers to a person or thing, generally and indefinitely, not in a particular way. Let's see the example. Some are born great, some achieve greatness. Here the word some is indefinite pronoun. Next, none of my lost books were found. Here, the word none is indefinite pronoun. In indefinite pronoun, neither the thing nor the person is definite, or we can say particular. It remains indefinite like unknown. अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आपको पूछ रहा है, यहाँ कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि व्यक्ति निश्चित नहीं है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूध में कुछ गिर गया है, यहाँ कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ भी निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है। फोर्थ काइंड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। Pronoun used for asking questions are called interrogative pronoun. Example, who are you? Here, who is interrogative pronoun. What is the matter? Here, what is the interrogative pronoun. प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, यहाँ कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह किसने किया है, यहाँ पर किसने शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। Fifth kind is the relative pronoun. Pronouns that usually connects two sentences and comes after the noun are called relative pronoun. Example, Sahil is the boy who took away my book. Here, who is the relative pronoun which is connecting two sentences and coming after the word noun which is boy. Second sentence, this is the girl whom I lend money. Here, whom is the relative pronoun which is again connecting two sentences and coming after the word noun girl. संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे वह आदमी मिला था जिसने चोर को पकड़ा था। इस वाक्य में जिसने शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है यह शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। दूसरा, हमें ऐसा व्यक्ति बताओ जिसको तुम जानते हो। यहाँ पर जिसको शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है यह भी दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। Sixth kind is the reflexive pronoun. Pronoun that reflects upon itself are called reflexive pronoun. Example, I enjoyed myself. Here, myself is the reflexive pronoun which is reflecting I.
Second one, she looks after herself. Here, herself is the reflexive pronoun which is reflecting the word she. निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। इस वाक्य में स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है जो कि मैं के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य, अपनी मदद आप करो। यहाँ आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है जो कि अपनी शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। Seventh kind is the distributive pronoun that refers to noun one at a time. Example, the soldiers had each a gun. Here, each is the distributive pronoun. Next, neither of you is honest. Neither is the distributive pronoun. विभाजक, जिस सर्वनाम का प्रयोग विभाजक के रूप में संज्ञा के बदले किया जाता है उसे विभाजक कहते हैं। जैसे हम में से प्रत्येक बुद्धिमान है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द विभाजक है। अगला, आप दोनों में से कोई एक जा सकता है। इस वाक्य में कोई एक विभाजक का कार्य कर रहा है। एम्फेटिक reflexive pronoun reflects the action of the subject upon doer, while emphatic pronoun emphasizes the action of the subject. Like, first we will see reflexive. He hurt himself. Himself is the reflexive which is reflecting upon he. Second one, she dressed herself. Herself acts as reflexive which is reflecting upon she. Emphatic, he himself hurt it. Here himself acts as an emphatic. She herself did it. Here herself acts as emphatic. दृढ़तावाचक सर्वनाम, जब निजवाचक सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम का महत्व बढ़ाने के लिए उस पर जोर दिया जाए तो वह दृढ़तावाचक सर्वनाम बन जाता है। जैसे मैं चाय खुद बनाऊंगी। इस वाक्य में खुद शब्द दृढ़तावाचक सर्वनाम है और वह संज्ञा का महत्व बढ़ा रहा है। दूसरा वाक्य, मैं खुद ही चाय बनाऊंगी। इस वाक्य में पुनः खुद शब्द दृढ़तावाचक सर्वनाम है पर यह संज्ञा पर जोर दे रहा है। Emphatic pronoun and reflexive pronoun are almost same but used in different way. निजवाचक एवं दृढ़तावाचक सर्वनाम लगभग एक जैसे ही हैं, केवल प्रयोग में अंतर के कारण वे निजवाचक और दृढ़तावाचक सर्वनाम कहलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।